एप्स इंडिस्क्रिमिनेटली हम लोग ग्रीड में आ जाते हैं कि यार इसका हमें पैसा डबल हो जाएगा जल्दी, तो हम खट से ऐप डाउनलोड कर देते हैं और हर एक परमिशन को यस दे देते हैं, which is very dangerous. Unknown link बिल्कुल ना खोलें. Unknown link से they can put a software in your mobile through which your whole mobile is cloned. It is hacked 100%. Your photos, videos, your chats, everything goes into the hands of the other person. So opening an unknown link might lead you to that. Password hacking is the most committed crime जो कि fraudsters करते हैं, and once your password is hacked, तब आपका सारी चीजें information they get and further crimes करता है. कुछ हो जाता है, वो आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएट बताइए. Yes. पुलिस को इमीडिएट बताइए. वो आपका ही शुभचिंतक है. आप पेरेंट्स को बताने के डर से बहुत ज्यादा ब्लैकमेल होते रहते हैं. We speak on cyber fraud and cyber encounters by a top cop, DGP of Uttarakhand, who will be joining me, and Mr. O.P. Manocha, who's a former DRDO scientist, looking at how vast the scope is for cyber fraud, और हम क्या कर सकते हैं to stay a step ahead. And fascinating book. I already did put it up. वो थोड़ा उल्टा दिखता है, मगर fascinating stories. I read it in one go actually. And cyber encounters when cops chase cyber fraud. Quick reminder to like, share and subscribe to the YouTube channel Jyotsna Mohan. So we're looking at various ways in which cyber fraud happens, and how we can actually keep a step ahead of things, and you are both the best people to tell us today. मगर मैं शुरू करती हूँ. There's a line आपकी introduction में that there are two kinds of people, one who have been frauded in a way and one who have not been. So it's fascinating कि आजकल इतने सारे scam calls आ रहे हैं. Everybody is been talking about it on social media कि इतने unknown numbers से we've been getting these calls. Mr. Kumar, if I can just start with you, what was the reason behind compiling all of this? Is it that we don't take cyber fraud very seriously? The reason behind compiling all these stories is that we want people to get educated. That because the cybercrime is increasing at such a fast volume, it's getting beyond our capacity to handle it. Therefore, people need to be educated so that they can avoid being defrauded by these fraudsters. So that is our attempt. By writing this book, through these stories, we are trying to tell them that this is the way it happens, and this is how police works it out, and how difficult it is to track these people, because there are no physical footprints, only digital footprints. Therefore, and then we give them safety tips, how you can be safe from these cyber criminals. And the best part is that these are based on true stories. सिर्फ स्टोरीज में आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग क्या लगा? OTP स्कैम्स हैं इसके अंदर हमने क्या किया है कि 12 डिफरेंट हम लोगों ने स्कैम्स बताए हैं. तो हर एक स्कैम अपने आप में फैसिनेटिंग है, डरावना भी है और आई ओपनर भी है. तो इसके अंदर एक स्टोरी है जिसमें एक डॉग के लिए एक लेडी जो है शी एंड्स अप पेइंग 66 लाख रुपीस. तो ऑनलाइन जितने भी हमारे यहाँ पर आजकल शॉपिंग हो रही है, तो वही हम बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप वेरीफाई कीजिए कि आपका जो सेलर है ऑनलाइन या वेब पेज जो है वो जेन्युइन है या नहीं है. लेकिन वो स्टोरी जैसे है उसको पढ़ेंगे तो उसकी इमोशनल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन उस समय ऐसी थी कि वो धीरे धीरे उनके जाल में लाइक द विक्टिम गेट्स ट्रैप्ड. इज इट अ फैलेसी, गलतफहमी है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ बड़े शहरों में होता है और यही सब समझते हैं that it's an elitist kind of a thing that happens. साइबर क्राइम किसी के साथ भी होता है. Most tech savvy people to most innocent people who never have touched technology. Number one. Number two, it happens with anyone from a metro to a small village. Because जो fraudster है उसको तो पता ही नहीं ना कि आप कहाँ बैठे हो. He doesn't know where your mobile is, where your laptop is, where your computer is. So it happens in the most interior parts of Uttarakhand to the Delhi, Bangalore, Mumbai, all big metros. Thirdly, हम सोचते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल है बहुत बड़ा टैक्स सेवी बंदा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी वो इतने सब फ्रॉड कर पा रहा है. ऐसा नहीं है. वो बिल्कुल
कई बार एकदम अनपढ़ लोग हैं, जामताड़ा में बैठे हुए, मेवात में बैठे हुए, वो बस थोड़ा सा छोटा सा साइबर क्राइम का कोर्स करते हैं हफ्ते भर का, और वो बेसिक कुछ ट्रिक्स जानते हैं, उससे वो कर देते हैं। मतलब एक फेक कॉल सेंटर चल रहा था देहरादून में, और वो अमेरिका में बैठे लोगों से जो है उनके कंप्यूटर में वायरस डाल दे रहे थे और फिर रैंसम मांग रहे थे उसको खोलने के लिए। सो ये लोग टेक सेवी हैं, बट सारे साइबर क्रिमिनल टेक सेवी हो ऐसा भी नहीं है। जो लोग ठगे जा रहे हैं वो भी कोई भी किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, 15 साल से लेकर 70 साल तक वाले, और वो कहीं भी रहते हैं, और कई बार वो बहुत टेक सेवी और कई बार बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं। Is there anything specific age group जिसमें vulnerability ज्यादा हो, senior citizens or younger children? Both are a little bit, I mean, children for a different reason, because they are willing to do everything on social media, and senior citizens because awareness कम हो सकती है. That is true कि सीनियर सिटीजन में अवेयरनेस कम होती है, जो नए नए सोशल मीडिया पे आते हैं उनमें अवेयरनेस कम होती है, तो वो लोग ज्यादा जल्दी ठगे जाते हैं। उनको लगता है जाने मुझे कितना बड़ा बिजनेस मिल गया, मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल हो जा रहा है, मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने वाला हूँ, जाने कहाँ से बढ़िया सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, मेरा सोशल लाइफ दोबारा शुरू हो जाएगा। ये पॉसिबल है, किंतु ये कहना कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल, ऐसा नहीं है, सभी एज ग्रुप्स वल्नरेबल। सिर्फ ये है कि जो इसमें एंटर करता है नया वो ज्यादा वल्नरेबल है, फिर जो कम अलर्ट रहता है वो ज्यादा दिन रात टेक सेवी का टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं वो भी वल्नरेबल है, अगर वो अपने आंख कान और अपने दिमाग को खोल के नहीं रखे। तो सडनली एक वीडियो कॉल आती है और आपने उठा लिया तो आप ट्रैप हो गए सेक्सटोर्शन केस में। तो ये किसी के साथ भी पॉसिबल है। किस प्रकार के केसेस you all have covered in the book? साइबर क्राइम जो है जब हम बात करते हैं तो वो 2-3 टाइप के साइबर क्राइम होते हैं। एक होते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, उसके अंदर क्या है कि मैलवेयर अटैक्स होते हैं जहां पर हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रोजन्स, इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस, इन द फॉर्म ऑफ वर्म्स। टू सिंप्लीफाई क्या होता है कि अगर हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है हमारे पीसी या हमारे मोबाइल पर और लैपटॉप पे जो कि मैलिशियस होता है। मैलिशियस मींस जो हार्म करता है, हमको हार्मफुल होता है। तो ये तो होगा हमारे पर्सनल अटैक्स। देन देयर आर अटैक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। अब हमने इस बुक में ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स कवर नहीं किया है, जबकि रिसेंटली न्यूज में भी था कि हमारे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भी अटैक्स हुए हैं। हम लोगों ने जो कवर किया वो पर्सनल अटैक्स कवर किया, बिकॉज many people are affected with these, और organizations के पास capabilities होती हैं, they have the strength and state has the like responsibility and funds also to cover up, वो अपने cyber security setup कर लेते हैं। लेकिन as individuals मोबाइल किसी के भी हाथ में आ गया, I have seen that you have written a like very wonderful book on teenagers, तो आपको पता है कि टीनेजर्स के जैसी मोबाइल हाथ में आया, छोटा बच्चा पैदा होते ही 2 साल में अपना मोबाइल ले लेता है, उसमें कोई हमने सिक्योरिटी फीचर्स ऐड नहीं किया है, हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने स्टोरीज में सेक्सटॉर्शन से लेके ओटीपी फ्रॉड है, देन फेक वेबसाइट्स हैं, एंड देन ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड्स हैं जो कि बहुत पहले 90s में शुरू हो गए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। बहुत से फ्रॉड्स हैं जो हमने इसमें कवर किए हैं। हेलीकॉप्टर फ्रॉड है उत्तराखंड में, OLX फ्रॉड है, हेलीकॉप्टर फ्रॉड है जो फेक बुकिंग साइट्स पे हो रही हैं। तो मतलब यू नेम इट एंड इट्स देयर। व्हाट इज द न्यू frontier जिस तरह से कहते हैं ना, that has opened up in cyber fraud? New frontier is now AI is coming into picture. अभी क्या है कि लोग बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी को फीड करते जा रहे हैं कि हमारा कुछ कॉम्पोजिशन लिखिए, हमारी पोस्ट लिखिए फेसबुक की। तो लिखता तो बहुत अच्छा है, बट इट इज अ लर्निंग सिस्टम, तो वो सारा कुछ लर्न करता जा रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी सोशल इंजीनियरिंग जो पहले फ्रॉडस्टर्स, साइबर फ्रॉडस्टर्स कर रहे थे, अब AI कर रहा है। जितनी AI एप्लीकेशंस हैं, दे आर अराउंड 100 AI applications available now. ChatGPT is one of them. Bard is another. तो AI से मुझे लगता है जो फ्यूचर आने वाला है ना, वो बहुत एक डीप फेक का फ्यूचर आने वाला है। डीप फेक आप समझ सकते हैं ना, अभी तो फेक ऑडियो बनते हैं, फेक वीडियो बनते हैं, फेक पिक्चर्स बनती हैं, उसको हम पता लगा लेते हैं। AI यूज होगी और उसमें डीप फेक आएगा, और उसको पता लगाना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Recently there was a fraud जिसमें deep fake video they have used and like taken some 5 crores or something. Yes. Everybody's really looking deeply कि क्या हो रहा है. Everybody is just going on the flow when it comes to social media and the online world. That is the thing. That is what Uttarakhand Police and Ashok जी particularly, ये लोग अपने हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से, बाकी टॉक से सब जगह कहते हैं कि आप साइबर सेफ रहिए, साइबर हाइजीन ऑब्जर्व कीजिए। आप टिप्स देते रहते हैं उसमें कि भाई कैसे सेफ रहें, क्या करें। OTP किसी को मत बताएं, किसी की कॉल मत लीजिए, वीडियो कॉल अननोन पर्सन की, फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए, सिस्टम को अपने सेफ रखिए, अपने मोबाइल पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
डाउनलोड करके दूसरी रखी है। जो नई चीज आने वाली है, इंटरनेट का स्पीड बढ़ गया है 5G के साथ, इट विल Yes. बिकम 100 टाइम्स फास्टर। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल जो है इक्विपमेंट जुड़ेंगे इंटरनेट से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, मतलब कार, आपकी कार में भी इंटरनेट से जुड़ी होगी, आपका फ्रिज भी जुड़ा होगा, टीवी तो पहले ही जुड़ा हुआ है। सो फिर इतना सारा डाटा हो जाएगा, पुलिस के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्रिमिनल के लिए आसान हो गया क्राइम करना, और पुलिस के लिए उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ डाटा विल बी सो हाई। इट इज लाइक अ हाउस हैविंग मेनी डोर्स नाउ। कहीं से भी आपका वायरस एंटर कर सकता है। इट कैन एंटर थ्रू योर फ्रिज, इट कैन एंटर थ्रू योर डोरबेल। सारी चीजें आपकी जब नेट पे आ जाएंगी, कैमरास, आपके सिक्योरिटी कैमरास आ गए, तो दीज आर नॉट वेरी सेफ डिवाइसेस। जितने भी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी डिवाइसेस हैं, दे आर नॉट वेरी सेफ। मतलब हमें उसमें भी सेफ्टी के रास्ते ढूंढने पड़े। वही जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट आया, उसके बहुत ही फायदे हुए। सोशल मीडिया, हम लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए, हमारे दोस्तों से, बैचमेट से, किंतु उसके साथ साथ उसमें नेगेटिव चीजें भी शुरू हो गई, क्राइम भी इंटरनेट पे आ गया। तो अब हमें नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको यूज करना है, किंतु उसको अलर्ट होके, अवेयर होके यूज करें। वो हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे पुलिस को इतना जल्दी उसमें ट्रेन करें। एंड द मंत्रा नाउ इज कि आपको अपना नेटवर्क सिक्योर करना है, बिकॉज डिवाइसेस आप सिक्योर नहीं कर पाएंगे। डिवाइसेस तो बहुत सारी आ रही है, मल्टीपल वेंडर्स से आ रही है। जो आपका नेटवर्क अगर सिक्योर होगा, तो जो भी डिवाइस कनेक्ट हो रही है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव अ जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। वो कहती हैं कि आप कोई भी अगर अंदर का भी एम्प्लॉई है लॉग इन कर रहा है, तो उसको बार बार वेरीफाई कीजिए। सो दिस जीरो ट्रस्ट पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग विल नाउ मूव टू होम्स आल्सो। You know, as a cop, क्या challenges हैं आपके लिए as you know, as a police person? ये क्राइम फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है इसका। फिजिकली क्रिमिनल आता है तो उसके हमारे पास बहुत सारे फुटप्रिंट होते हैं, किस रास्ते से आया, किस रास्ते से गया, किसी न किसी सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा, कहीं न कहीं कोई सीडीआर में, मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो वो जो उसके फुटप्रिंट है उसको पकड़ना बहुत आसान होता है। तो यहाँ कोई फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डिस्टेंसेस जो है, ट्रेडिशनल क्राइम के डिस्टेंसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम 100, 200, 300 किलोमीटर से आके क्राइम कर लेगा। यहाँ तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई जमताड़ा में है। इवन हमने इसी बुक में नाइजीरियन क्रिमिनल्स को पकड़ा है, कैमरून के क्रिमिनल को पकड़ा है। तो क्रिमिनल जो है बहुत ही बड़े डिस्टेंस से भी क्राइम कर सकता है। तो इसलिए हम जब वहां जाके, हमारे लिए वहां जाके ऑपरेट करना कितना मुश्किल है। और तीसरा चैलेंज टेक्नोलॉजी का है कि वो लोग रोज नए नए मेथड्स ढूंढते रहते हैं, इजाद करते रहते हैं। तो हमारी पुलिस इतनी टेक सेवी नहीं है, या हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना है, उतना फास्ट होना है। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, उसको भी हमें पार करना है। इतने सारे एप्स हैं, nobody really thinks twice before Yes. downloading. वो सब लोग यहाँ पे कोई बच्चा डाउनलोड कर रहा है, कोई बड़ा डाउनलोड कर रहा है। That's another challenge, isn't it? रोज नए Yes, that is a challenge। और उसके लिए हम लोग टिप ये देते हैं कि कोई भी एपीके फाइल होती है उसको आप मत डाउनलोड कीजिए। आप प्रॉपर गूगल प्ले स्टोर से जाके और उसके रिव्यूज देख के वो कीजिए। क्योंकि अभी चाइनीज फ्रॉड हमने उसमें निकाला था, चाइनीज ऐप लोन एप्स आई थी, इजी लोन एप्स हैं, इजी मनी डबलिंग एप्स हैं, पावर बैंक ऐप थी। तो एप्स इंडिस्क्रिमिनेटली हम लोग ग्रीड में आ जाते हैं कि यार इसका हमें पैसा डबल हो जाएगा जल्दी, तो हम खट से ऐप डाउनलोड कर देते हैं और हर एक परमिशन को यस दे देते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। वी शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर गिविंग परमिशन फॉर माइक्रोफोन, एटलीस्ट कैमरा। Sextortion is another big thing that you've picked up in the book. और जहाँ छोटे छोटे शहरों, मतलब not even शहर, जहाँ से the origin of these sextortion rackets, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और पहले तो खाली मेल्स के साथ हो रहा था कि मेल को वीडियो कॉल करेंगे और उधर से कोई फीमेल न्यूड होगी तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे। नॉर्मल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा तो उसे पुलिस बन के कॉल करेंगे, you have been watching obscene videos and you are being arrested, so then they will blackmail him. This was the modus operandi. Nowadays they have even started bullying girls, young girls, and then they will make a video call, and on the other side will be a Indonesian movie, and then they'll take a screenshot, and then they say you were watching blue movies and we will tell your parents, so you better send your in the blackmailing they will ask for her nude photos or her nude videos, and once that photo or video is gone, then they openly blackmail the girl as well as the parents. They are in the loop. Daily new methods of sextortion are coming up. So जो एक chapter has been focused on the ATM
ATM machine, which is actually कोई ज़्यादा सोचता नहीं because it's an old, ATM machines are not new, पुराना है, it's not supposed to be, but the ease with which it can be done, I think it really took me back. अभी तो और इजी हो गया वो, अभी तो एटीएम को हैक करने की भी जरूरत नहीं है। अभी RFID रीडर्स हैं जो आपका कार्ड जेब में पड़ा है, आपके बगल से गुजरेगा और पूरी कार्ड इन्फॉर्मेशन रीड कर लेगा। तो उसके लिए कहते हैं आप अपनी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के रखिए, या उसको आप RFID जैकेट्स आती हैं, कार्ड्स को उसमें डाल के रखिए। तो ये सर नए नए मेथड्स कर रहे हैं। तो ओवर द टाइम में जब आप पेमेंट करते थे होटल्स में, तो एक आपका आएगा वेटर और फिर ले जाके क्लोन बना देगा कार्ड का, ये भी एक मॉडल ऑपरेंडी होता था। यस, और एक जूसर एक है कि जिसमें आपको चार्जर कोई दे देगा कि अच्छा आप चार्ज कर लीजिए, वो चार्जर क्या है, वो पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा फोन में से, बिकॉज इट गोज इनटू द सेम इंटरफेस, USB इंटरफेस, जहां से हम चार्जिंग करते हैं और जहां से हम डेटा शेयर करते हैं। सो इट्स आल्सो वेरी डेंजरस crime which has now come up, cybercrime. So the list is endless. The list is endless. Really, it is. Kai, what are your tips for young girls on social media? सबसे बड़े टिप्स यही है कि नंबर 1 तो ये अननोन वीडियो कॉल बिल्कुल ना उठाएं। नंबर 2, अननोन लिंक बिल्कुल ना खोलें। अननोन लिंक से they can put a software in your mobile through which your whole mobile is cloned. It is hacked 100%. Your photos, videos, your chats, everything goes into the hands of the other person. So opening an unknown link might lead you to that. एक और टिप मैं ये देना चाहूंगा यंग गर्ल्स को, बिकॉज इट इज अ टैबू। पेरेंट्स डोंट डिस्कस विद यंग गर्ल्स की क्या करना है, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यंग गर्ल्स को ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फोटोग्राफ्स और अपना पब्लिक डिस्प्ले नहीं करना अपनी चीजों का। ठीक है, आप अच्छी ड्रेसेस पहनिए, आप घूमिए, सब कुछ कीजिए, बट एक सेकंड टू सेकंड इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे मत डालिए, बिकॉज देयर आर people who are stalking you, there are people who are watching कि आपका क्या चल रहा है, social engineering करके then you may become a victim. You have to be very careful. एक बहुत बड़ी एडवाइस यंग गर्ल्स के लिए है कि अगर कुछ हो जाता है आपके साथ तो आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएट बताइए। Yes. पुलिस को इमीडिएट बताइए, वो आपका ही शुभचिंतक है, they are your well wishers। तो क्या हो गया अगर उन्हें पता चल गया कि आप थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे, डांट लेंगे थोड़ा मोटा, बट क्राइम हो रहा है दूसरी तरफ तो आपका शुभचिंतक नहीं है ना, वो तो फ्रॉड है, वो तो क्रिमिनल है। तो आप पेरेंट्स को बताने के डर से बहुत ज्यादा ब्लैकमेल होते रहते हैं, तो वो नहीं होने देना है। तो हमने एक स्टोरी में था कि लोग ज्यादातर, एक था जो पॉर्न मूवीज देखता था लड़का, तो वो पब्लिक शेमिंग के डर से पुलिस के पास नहीं जाता कि मुझे लोग ये कहेंगे, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा न करने से वो अपने आप को और नुकसान दे रहा है। सो इसके लिए ऑनलाइन हेल्प नंबर्स हैं, 930 तो है ही है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए। बट इन द केस ऑफ यंग गर्ल्स हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि भाई इस लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, तो हम इमीडिएट उसमें एक्शन लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को बताने में और पुलिस को अप्रोच करने में डिले नहीं करना चाहिए। Cybercrime, the department, is it equipped to handle ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, इतनी बड़ी वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स आती है? वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो हम लोग जो है जिस पे केस पे फोकस करते हैं उनको वर्कआउट तो कर ही लेते हैं, ठीक है। बट बड़ी प्रॉब्लम वॉल्यूम की है कि बहुत ज्यादा संख्या में क्राइम हो रहा है, इसीलिए ये किताब लिखी है कि लोग अवेयर हो। अभी क्या है, जो फिशिंग लिंक भेज रहा है, जामताड़ा में या मेवात में बैठा आदमी, उसने 1000 को भेजा, 10 लोग जाल में आ जाते हैं। वो 10 लोग भी जाल में जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन हमारा काम होगा। Talking about gaming as well, उसके थ्रू भी क्या is it possible? Yes, it is always possible. गेमिंग क्या, अभी जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, they are into games. तो वो पहले क्या था कि बाहर जाके खेलते थे साइबर कैफेज में, now they have games on their mobiles. So cyber criminal can reach to their hands. Crypto world, I wanted to find out. Crypto world is also a very grey area, isn't it? Cryptocurrency is a grey area because government has neither declared it legal nor illegal. But my advice to everyone would be to avoid crypto, because cryptocurrency के नाम पे और बड़े frauds possible है। और हमारा जो हमने इसमें पावर बैंक एंड घोटाला इसमें दिखाया है, जिसमें पैसा डबल हो गया, चाइनीज ऐप थी ये, और उसने लोगों को 15 दिन में पैसा डबल करने को कहा, और 3 महीने में 10 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया, 1500 करोड़ देश भर से चला गया, 250 FIR हुआ इस केस में। तो ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गया। तो क्रिप्टो बहुत ज्यादा जो है हवाला के टाइप के यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग में यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम में यूज हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी
वो भी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी चल रही है, तो उनके और उनमें क्या गारंटी? हमारे पैसे का तो आरबीआई का गारंटी है ना। तो वो मतलब मैं तो ये कहूंगा कि वो बिल्कुल 100% सेफ तो नहीं है बिल्कुल। एक और concern is the mental health of the victims, the मानसिक हालत, of those who have lost all their savings in cyber fraud. यस, वो हमने इस किताब में काफी उसको डील किया है कि क्या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है और कैसे बेचारा एकदम शॉक में आ जाता है आदमी, लड़का या लड़की। बट ऑब्वियसली हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना ही है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना है। पुलिस भी उसमें काउंसलिंग करती है। तो जैसे मैंने कहा, लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं होने देना। खुद को ब्लैकमेल तो मैं होता हूँ ना। जब तक मैं, जैसे ये लोग सेक्सटोर्शन वाले कॉल करते हैं, उनका पर्पज आपका वीडियो वायरल करना थोड़ी है, उनका पर्पज आपसे पैसा निकालना है। वो एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से आपसे पैसा निकालना चाहेंगे। तो आप डरिए मत, आप जो है उनको चैलेंज वो करिए, फेस करिए और अपने पेरेंट्स को और पुलिस को दोनों को बताइए। तो क्रिप्टो करेंसी में भी एक साइबर फ्रॉड है विच इज कॉल्ड क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है, विदाउट आवर नोइंग आवर लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी इट हैज टू बी माइंड, तो इट कंज्यूम्स MIND माइंड, so it consumes lot of power, compute power, which takes electricity and which takes many heavy processors for that. तो अब साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए आपकी मशीन पर एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो कि आपकी मशीन को स्लो कर देती है, एंड यू डोंट इवन कम टू नो। आपको लगता है यार माय सिस्टम हैज बिकम स्लोअर, हो सकता है इस लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अपग्रेडेड या कुछ ऐसा है। तो ऐसे करके वो आपका सिस्टम यूज करते हैं इन द बैकग्राउंड। Which is the most common kind of crime जो हम सोचते भी नहीं है, for the ordinary person, which is the biggest threat actually. Because that is clicking on links. ये हम क्या करते हैं कि देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो इतना ज्यादा पासवर्ड बॉम्बिंग करता है, इट इज कॉल्ड पासवर्ड बॉम्बिंग। आपका पासवर्ड जानने के लिए एक तो वो आपके सोशल इंजीनियर से ही कम्स टू नो अबाउट, या मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में जाऊंगा, आई कैन कम टू नो व्हाट्स योर फैमिली के बच्चों का क्या नाम है, फ्रेंड्स का क्या नाम है। तो हम लोग भी टेंड टू कीप पासवर्ड्स व्हिच आर बेस्ड ऑन आवर फैमिली मेंबर नेम्स और डेट ऑफ बर्थ, या 1 2 3 4। 60% अमेरिकन्स यूज 1 2 3 4 5 6। तो पासवर्ड हैकिंग इज द मोस्ट कमिटेड क्राइम जो कि फ्रॉडस्टर्स करते हैं। एंड वंस योर पासवर्ड इज हैक, तब आपका सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे गेट एंड फर्दर क्राइम्स करता है। इट इज लाइक अ ट्रोजन, एक हॉर्स आ गया, उसके अंदर पूरे सिपाही हैं, एक बार और वो रास्ता पूरा खुल गया, तो सिस्टम इज नाउ ओपन एंड इट्स वल्नरेबल टू बी। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें पासवर्ड यूज करने हैं, कैरेक्टर्स उसमें यूज करने हैं, नंबर्स यूज करने हैं, नोट डाउन समवेयर, बट उनको कॉम्प्लेक्स रखिए, उनको इजी मत बनाइए। एक और क्राइम है कि जो आप देखते हैं पॉपअप्स आते हैं, अगर आप कोई भी किसी साइट में जाते हैं वो हमेशा आपको पूछता है आई एग्री। तो इतनी टर्म्स कंडीशंस है, नोबडी रीड्स दोस टर्म्स कंडीशंस। हम क्या करते हैं, हम सीधा आई एग्री कर देते हैं, और उस आई एग्री में वी हैव गिवन देम द राइट्स टू रीड आवर फाइल्स, टू रीड आवर मैसेजेस, टू मेक फोन कॉल्स, टू डू एवरीथिंग ऑन आवर मोबाइल्स। So this is a good question. Somebody just asked, she's getting bombed with like, do this, do that, follow this, follow that. Is there a way जो हम restrict कर सकते हैं getting these kind of messages and calls? Yes. See, we don't have to react to every message. अशोक जी भी कहते हैं कि आप 5 सेकंड रूल अपनाइए। कोई भी आपको मैसेज आया, आप पहले सोचिए कि मुझे क्यों आया, why I am being offered a lottery, why I am getting this message that you click on this link, have I ever applied for something। और आजकल मैसेज हेडर्स इतने जेन्युइन लगते हैं, यू विल थिंक यार ये तो BSNL से है, ये एयरटेल से है, ये किसी कंपनी से है, एंड देयर आर मशीन्स व्हिच आर जनरेटिंग हेडर्स। तो हमें ये करना है, वी हैव टू पॉज, थिंक एंड देन एक्ट। सो दीज आर द 3 थिंग्स। सबसे पहले आप रुकिए, सोचिए, फिर एक्ट कीजिए एंड डोंट रिएक्ट। लेकिन आप अलर्ट रहिए, डोंट रिलाई ब्लाइंडली ऑन AI। मैंने AI से पूछा, चैट GPT से, कि हु इज OP मनोजा, तो थोड़ा सा उसने रिसर्च करके निकाला, उसने कहा ओ यू आर अ सुपर साइंटिस्ट, यू हैव डन रिसर्च ऑन न्यूक्लियर दिस ऐसी चीजें जो आई वाज सरप्राइज्ड एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। और उसने इतनी लंबी कहानी बताई मुझे कि आई वाज सरप्राइज्ड, अरे हु इज दिस OP मनोजा। कुछ चीजें उसने फैक्ट मेरी भी उठाई, यू आर एन ऑथर लाइक को ऑथर ऑफ साइबर एनकाउंटर्स, वो भी लिया, लेकिन बाकी उसने सब गप मारी। उसने बार्ड ने भी ऐसी गप मारी, हमारी बुक के लिए कहता है, ये सोल्ड मोर देन 1 लाख कॉपीज ऑफ योर दिस साइबर एनकाउंटर्स। ठीक है, इट इज नो like selling very good, but lakhs अभी भी नहीं हुआ है। So people should be careful, and this is my tip to youth also, कि आप अपने आप को अपग्रेड रखिए, यूज कीजिए टेक्नोलॉजी, but with caution. That's the right word actually. Use it but with caution.
Thank you very Yeah. much, Mr. Manocha. Wonderful speaking with you.